Good morning and good evening, everybody. May the peace of Lord, grace, and Holy Spirit be with you all. We thank you for this wonderful moment, Father. Thank you. We praise and honor and glorify your name, Lord, that you are the mighty God, mighty Savior, mighty Redeemer. Our Heavenly Father, who is the King of heaven and earth and glory, and King of angels, Father, we give you all the honors and glories and praise your name, Lord. There's no other God before you. There's no one like you. There's no one beside you who love us so much, Lord. You're so kind and loving, and our rock of salvations, and our fortress, our hiding place. We take honors. We give honors and glories to you, Lord Jesus Christ. Thank you for this holy sanctuary ministry, for this platform that you have brought here, Father, so we can all gather here. We can worship and glorify your name, Lord. As I come before the throne of grace, Father, with a thanking heart, by praising your name, Father. We're about to start the service. We're asking to take a place, Father. I pray for all our participants and all people out there, Lord. And your blessing and your grace be with everybody's, Lord. And let the peoples come and join us, Lord. And Father, let the Spirit come. Open their spiritual eyes, Father. Open their hearts so they can come and we can all gather and worship you, Lord, that as you want us to worship you, Lord. Come and pour, let your Spirit be here, Lord. Pour your Spirit onto us, breathe onto us, Lord. Open our ears so we can hear your voice, Lord. Open our eyes so we can see you more, Lord. Open our hearts, mind, soul, our brain, give us wisdom and knowledge. And Father, give us the word and give us some more knowledge and give us a discernment. So, and then fill us with your Holy Spirit once again, Father. We're asking that so we can know deeply to you, and then we can apply it to our life, Lord. Because, Father, it is necessary that the Lord, our Lord Jesus Christ, our Father, our Heavenly Father, you said, when I go, I'll give you the Spirit of the truth. When the Spirit of the truth will come, I'll tell you the deep thing about me, Father. Thank you, Father, for this revelation through the Holy Spirit. We continue to pour your Spirit onto us, Lord. And we pray for blessing everybody's, Lord, all the believers out there in the mighty name of Lord Jesus, that you pour your Spirit onto them, Lord. Open their spiritual eyes so they can have encounter every day with their Savior, Lord, and open their ears so they can hear your voice, Lord. Open their spiritual eyes and give them a spirit of the truth so they can know the deep thing about you, Lord. We bless your name, praise your name, and honor and glorify your name, Lord. Once again, Father, take a charge and let everything go smooth and effective, Lord. Be present wherever we stand. And Father, once again, let your Holy Spirit grace with us, Lord, in the mighty name of Lord Jesus Christ. We will worship the Lord, Father, Son, and the Holy Spirit. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Let all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great
are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this wonderful time once again, Father. All the honors and praise and glory to Lord Jesus Christ. We say, Holy, holy to the Lord Almighty, who is and who is to come, who is our hiding place, who is the rock of salvation. We turn to you, we turn to our stronghold, and we set our eyes onto you, Lord. You are our living hope. You are our rock of salvation. You are who deliver us out from everything, Lord. Your name be praised. There's the powers in your name, the Lord. We know that you are the living God. We know, Father, that you turn every bad news into the happiness, Lord. You turn every sorrow into rejoice, Lord. You turn every health issues into healing, Lord. We honor and glorify your name, Lord, that you are the mighty Savior. You are our Heavenly Father, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Blessing be upon all of us, Lord. Amen, amen, hallelujah. अभी हमें मारिया ने ज्वाइन किया, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनकी प्रस्तुति में कोई गीत गाएं. इस्लाम सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी. करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी. सदा थी कर है रहमत साडे रब दी, सदा थी कर है रहमत साडे रब दी. काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले, ओदी उस्तत विच मुंह खोले. सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी. हारून दे कर दे सारे, हारून दे कर दे सारे, काश आखण मार के नारे, काश आखण मार के नारे. सदा थी कर है रहमत साडे रब दी, सदा थी कर है रहमत साडे रब दी. काश आखण ओ हमेशा, काश आखण ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा. सदा थी कर है रहमत साडे रब दी, सदा थी कर है रहमत साडे रब दी. हालेलुया, आमीन. आमीन, हालेलुया. हम खुदा उनकी प्रस्तुति को जारी रखेंगे. मैं गीत गाऊंगी. Amazing grace, how sweet the song
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. Amazing grace, oh sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. My chains are gone, I have been set free. My Savior God has ransomed me. Like a rushing flood, His mercy lead, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Son. Praise you, Holy Spirit. Scriptures say, Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayers and petitions with the thanksgiving present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने हमें फिर से मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सके और हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं और हमारी जो दिल और दिमाग और हमारी सोचें हमारे ख्यालें हर एक चीज में हम उसमें खुशी मनाते हैं और उसमें शादमान रहते हैं कि वो हमारी निजात की चट्टान है और वो हर उस बुरी चीज हर उस बुरी खबर को अच्छी खबर में बख्शता है और वो हर चीज से निजात देने वाला खुदावंद है, मैंने पहले भी कहा है और हम उसको शुक्र करते हैं और शुक्र बजाते हुए हम उसकी बारगाह में दाखिल होते हैं। मैं मारिया से कहूंगी वो खुदा उनकी प्रस्तश में कोई और गीत गाएं। जी हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू अबद तक बादशाह है अदालत के लिए तू तख्त पर है तेरे आगे खुदा सारा जहां है तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा सच्चाई से मसीहा काम लेगा तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा सच्चाई से मसीहा काम लेगा सभी कौमें तेरे आगे हो हाजिर खुदावंद रास्ती से तू भरा है सभी कौमें तेरे आगे हो हाजिर खुदावंद रास्ती से तू भरा है हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू अबद तक बादशाह है उठाते जुल्म जो
दुख से भरे हैं, तो ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तो ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। दिलों जा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तो उनका आसरा है। दिलों जा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। हालेलुया, आमेन। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. हम खुदा उनकी प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, हम गीत गाएंगे, उसकी वर्शिप, आज हम उसकी वर्शिप करेंगे। मारिया ने सरमन डिलीवर करना है, तो हम इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ पढ़े, हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, उसकी हुजूरी में अपनी दुआएं, उसकी शुक्रगुजारी की दुआएं करते हैं। तो मैं मारिया से कहूंगी कि वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, हम सब के लिए और सारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सबके लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और सबके लिए बरकत चाहते हैं। जी हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अजीम, तू जलाली, तू पाक है। खुदा हम तेरी सिताइश करते हैं, हम तेरी नाम को खुदा ऊंचा करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, क्योंकि तू ही हम्द, तारीफ और शुक्रगुजारी के लायक है। खुदा हम सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने वक्त बख्शा है कि ताकि हम तेरे हजूर में आ सकें, तेरी सिताइश कर सकें, खुदा तेरी प्रस्तिश कर सकें। तो खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए। खुदा तूने संभाले रखा है, तू आज भी हमारे साथ है, तू हमारी सिपर, हमारी ढाल है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तूने बहुत से लोगों को खुदा अपनी खिदमत के लिए चुना है, सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। इस मिनिस्ट्री के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा यीशु के नाम में सारे ग्रुप पर तेरा हाथ बढ़े। खुदा सारी टीम पर तेरे हाथ को मांगते हैं। खुदा जब हम तेरी सिताइश करते हैं तो आज भी खुदा तो हमारी रहनुमाई करना, तेरा रूह कुद्स हमारी खुदा रहनुमाई करे, हमें गाइड करे, ताकि हम तेरे नाम के शाया तेरी खुदा तेरी बुजुर्गी के लायक हम तेरी हमद कर सके, तेरी सिताइश कर सके, ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम खुदा उनकी प्रस्तुति में गीत गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जहां जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो जंग विच है जोरावर,
ओ बादशाह जलाला, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे हो, ऊंचे हो सब दारो, जहां जलाल दा बादशाह आवे, सिर तत ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. हम खुदा की प्रस्तुति को जारी रखेंगे। मैं मारिया से कहूंगी कि वो खुदा की प्रस्तुति में कोई और गीत गाएं, उसके बाद हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम कोर्स गाएंगे। हमारे साथ पास्टर फयाज हैं, तो वो फिर कलाम के लिए दुआ करेंगे। तो मारिया आप प्रस्तुति करें खुदा की हुजूरी में और प्रस्तुति करें। जी हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। हालेलुया, आमेन। आंटी जी अपना माइक ऑन कर लें। Hallelujah, praise the Lord. We are battling with the fear. The fear caused so much destruction into our body.
And with the God's help, each one of us can progressively improve in the way of fight fears, worry, anxiety, all those Satan is trying to destroy. He's just trying to destroy our minds and brains and soul and our heart by causing a fear, anxiety, so we cannot focus onto the God. But with the God, we can have, these things can alleviate. So today, मैं इसके बाद मैं अपनी गवाही दूंगी, क्योंकि this is a very big thing. You know, when we don't have a fear, when we are with the Lord, we have fear. There's a two type of fear. One is the fear of God, the other fear of the world, which is the Satan fear. So we can distinguish between what can these fear causes. With the fear of the God, you can have the life, but with the fear of the world, you will die. Because the fear of the world, it will cause you to go towards the death and towards the hell. As it is the scripture say, Psalm 41, 10 to 11 say, his pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the legs of the warrior. The Lord delights in those who fear him, who put their hopes in him, in his unfailing love. Fear of God is the beginning of the wisdom. Fear of the world. Now we can see the fear of the world, which is the Satan's, which is an unrealistic fear in the Bible. Jesus has addressed in the Bible, fear, worry, affect your physical health, also reflect our spiritual health. Our brain's responses are most influenced by our hearts and your values. क्योंकि हमारा ब्रेन का और हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का और हमारे हार्ट का कनेक्शन है. तो जब हमारे ब्रेन जो है एंग्शियस होता है, वरी होता है, वो हमारे दिल पे अफेक्ट करता है. जब हमारे दिल पे अफेक्ट होता है, then we fall into the sickness and diseases. तो हम खुदा उनकी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगे. इस पर मैं कंटिन्यूसली बात करती जाऊंगी. तो हमारे साथ पास्टर इरफान है. मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए कोर्स कहें. आज मारिया खुदा उनके कलाम की खिदमत करेंगी. फिर पास्टर फयाज जो है खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे. तो पास्टर इरफान अशरफ, आप खुदा उनके कलाम के लिए कोई कोर्स गाएं. मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो. आप सबों को सलाम. कभी सलाम. भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका. छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा. भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका. रुकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रुकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया. जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया. हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला. छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा. भेज अबर रुका, भेज रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका. सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो. रूहे पाक की बूंदे डालो बीच कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीच कलाम का बीजो. मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा. छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा. भेज अबर रुका,
भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, शुरू का मजा चखा, शुरू का मजा चखा। चम चम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। Hallelujah. Praise the Lord. Let His Holy Spirit be poured down onto us all. खुदा उनकी हुजूरी के लिए इसका शुक्र अदा करते हैं। मैं पास्टर फयाज हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। आए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपने दिल खुदावंद के आगे डेलें और दुआ में जाएं। आसमानी बुजुर्ग खुदा, आसमानी लश्करों के खुदा, रब्बुल फ़ाज, दे खुदावंद, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरा बंदा दाऊद भी तेरे नाम को मुबारक कहता है। तू जो कदूस खुदा है, दे खुदावंद, पाक कलाम में लिखा है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारियों को बख्शता है, तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। देख खुदावंद, जिस तरह तूने अपने बंदा मूसा पर अपनी राहों को जाहिर किया, जिस तरह तूने अपने कौम इसराइल पर अपने कामों को जाहिर किया, देख खुदावंद, मैं ऐसी रूह आज के वाइस पर मांगता हूं पाक खुदा। इस तरह खुदावंद, ऐसी रूह तेरी कौम पर, तेरे बेटों बेटियों पर जो आज इस कलाम को सुनने वाले हैं, मांगता हूं पाक खुदा। देख खुदावंद, तूने पाक कलाम में लिखा है कि तू अपने खादमों को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करता है। आज जब तेरी बेटी मारिया खुदावंद तेरा कलाम सुनाए, तेरे पाक रूह की आग उसके साथ हो, उसकी जबान का जिम्मा ले, उसके गले का जिम्मा ले, उसको अल्फाज की तरतीब दे, उसको पाक रूह से भर दे पाक खुदा। देख खुदा, मैं तेरा छोटा सा खादम होते हुए तेरी बेटी को बाप बेटे रूल को उसके नाम से बरकत देता हूँ, और सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक तेरे पाक रूह का मसा चाहता हूँ। खुदा हमारी दुआओं को सुनना। देख खुदा, आज की सारी इबादत के लिए, मीटिंग के लिए जो शुरू हो चुकी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते। खुदा शुरू से लेके आखिर तक खुदा तू हमारे साथ होना, तेरा रोब और दबदबा रहे। अपा खुदा, जितनी देर तेरी खात्मा कलाम सुनाए और जितनी देर हम सब कलाम सुने, तेरा पाक रूह का मसा हर लम्हा हम पर जारी रहे, हमारे साथ रहे पाक खुदा। देख खुदा, आज के कलाम के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाए, तसल्ली पाए, खुशी और इत्मीनान पाए यीशु नाम से। और तेरी खुशखबरी को जब सुने, खुदा जिंदगियां तब्दील हो, हमारी नजात का सामान बने। खुदा पाक खुदा, हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे यीशु नासरी। देख खुदा, आज का कलाम बहुत सारा फल लाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाए पाक खुदा। हम सब के लिए बायसे बरकत हो। तो अपनी बेटी को पाक रूह से भर पाक खुदा, कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे कलाम की जब मनादी करे, हम इस्लामती की बातों को सुने, हमारे कान, हमारा जहन, हमारी सोच मुकम्मल तौर पर खुदा तेरे सामने रहे। हम अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करते हैं, झुकाते हैं, अपने कान तेरे सामने सरनगु करते हैं, झुकते हैं, सुनते हैं पाक खुदा। अपने सिरों को झुकाकर अपने कानों को तेरे आगे सरनगु होकर खुदा तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हो। खुदा अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे और खूब अपने पाक से भर दे।
मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। ये हम अपने माइक अनम्यूट करके खुदा उनके कलाम को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। खुदा उनके कलाम के लिए बरकत चाहते हैं, उसके बंदा के लिए बरकत चाहते हैं, उसकी बंदी के लिए मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन हमारा खुदा भला खुदा है और वो उसने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया ताकि हम उसकी आवाज को, उसके मुंह की बातों को बयान कर सकें। कलाम कहता है कि उसने दयानतदार जानते हुए हमारे खुदावन ने हमारे स्पुर्द खिदमत की है, अपने कलाम को हमारे हाथों में दिया ताकि हम उसकी मुनादी कर सकें और उसके नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल मिलता रहे। तो आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। फिर हम रोमियो के खत में भी इसका अगर क्रॉस रेफरेंस देखें तो वहां पर 5वें बाब में वहां उसकी तीसरी आयत में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। खुदा के कलाम में से हमने आजमाइश के बारे में पढ़ा। कलाम कहता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, अगर हम देखें तो दुनिया में मौजूद हर शख्स किसी ना किसी आजमाइश का शिकार है, उसको सामना है आजमाइश का। लेकिन जो क्रिश्चियन लाइफ है उसमें एक ईमानदार की जिंदगी में ये आजमाइशें नहायत अहमियत की हामिल हैं। अगर कोई कहे या सोचे कि वो मसीह के पीछे भी चले और उस पर आजमाइशें भी ना आए तो ये नामुमकिन बात है, क्योंकि मसीही जिंदगी जो है वो आजमाइशों का ही नाम है। जब हम मसीह के साथ चलना शुरू कर देते हैं, उसको अपनी जिंदगी दे देते हैं और उसकी हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर आ जाती है, तो आजमाइशें आना भी जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी खुद कलाम मुकद्दस में कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। मसीही जिंदगी जो है मसीह की सलीब उठाने का नाम है। मुश्किलात में से होकर हम आजमाइशों में से होकर हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। और ये बात तय है कि एक ईमानदार की जिंदगी में आजमाइशों का आना लाजमी एक जुज्व है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक ईमानदार को क्या करना चाहिए या उसका रवैया कैसा होना चाहिए इन सारे हालात में। याकूब जो रसूल है वो कहता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो कमाल खुशी की बात समझना। वो एक ईमानदार का एक जो उसका स्टैंडर्ड है मुकर्रर करता है कि चाहे वो आजमाइशों में पड़े, चाहे हालात उसके खिलाफ हो जाए, मुश्किलात हों, परेशानियां हों, आ जाए, दुख हों, कमाल खुशी की बात जानो, कमाल खुशी की बात समझो। हालात कैसे भी क्यों ना हो, एक ईमानदार की जिंदगी से खुशी का जो एलिमेंट है वो नहीं जाना चाहिए। उसकी जो खुशी है, उसका इत्मीनान, उसका ईमान उससे छीनना नहीं चाहिए। उसका ईमान, उसका भरोसा ये होना चाहिए कि ये आजमाइशें, ये मुश्किलात जो हैं, ये दुख जो हैं, ये सब मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। कमाल खुशी की बात जानो, कलाम कहता है कि इन आजमाइशों को कमाल खुशी की बात, क्यों हम कमाल खुशी की बात जाने। आगे लिखता है
کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ جو پریشرز ہیں، پریشرز کے نیچے رہنے کی ہمیں طاقت مل جاتی ہے۔ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ جب جب ایک ایماندار آزمایا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی جو آزمائش ہوتی ہے تو یہ آزمائش اس کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اس کے اندر برداشت قوت پیدا ہو جاتی ہے، قوت جو ہوتی ہے برداشت کی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ آزمائشیں ایک ایماندار کے لیے اس کی دوست بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں طاقت دیتی ہیں، ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہیں، ہمیں مضبوط کرتی ہیں، اور تاکہ ہم ان پریشرز کے نیچے قائم رہ سکیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو رسولوں کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خداوند کے ساتھ چلتے رہے، ان کو مارا گیا، لیکن وہ خوشی کے ساتھ ان سب چیزوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ صبر خداوند نے ان کی زندگیوں میں ان آزمائشوں کے ذریعے سے دے دیا۔ کلام کہتا چوتھی آیت میں کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے ہو جاؤ، تاکہ تم کامل ہو جاؤ، تاکہ تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آزمائشیں جو ہیں ایماندار کو کامل کرنے اور اس میں سے کمیاں نکال کر اس کو پیور کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ جیسے ہم اکثر مثال سنتے ہیں کہ سونے کو جب بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے تو اس میں سے ساری وہ کثافتیں جو ہوتی ہیں، جو ایک سونا پیور کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ اس میں سے ساری گندگی کو نکالا جائے، تو اس کو بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صاف ہو سکے، ایک کندن بن سکے، پیور ہو سکے۔ وہ اگر ایماندار اس وقت صبر کو پورا کام کرنے نہیں دیتے تو پھر وہ کامل نہیں بن سکیں گے۔ ان کی خامیاں، ان کی کمیاں جو ہیں ان کے اندر رہ جائیں گی، اور وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو خدا ان کے پیچھے کام کر رہا ہوتا تاکہ ہم کامل ہو جائیں، ہمارے اندر کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ایک خدا کا خادم یونگچو، اس کے پاس کوئی ایک شخص آیا جو کہ دماغی توازن اس کا درست نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی اس کو اس کے پاس لے کر آئی کہ اس کے لیے پادری صاحب دعا کریں۔ تو جب اس کے لیے دعا کی گئی تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے خداون کو پہچانا اور وہ بندہ شفا پا گیا اپنی بیماری سے، جو کہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے کاروبار شروع کیا، اور سمندر کی جو سٹارٹ میں اس نے بنایا، ایک فیکٹری لگائی نمک کی، وہاں پر اس نے کاروبار شروع کیا، بزنس کرنا شروع کر دیا۔ تو بزنس اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بہت کامیاب ہو گیا، ترقی ہو گئی اس کی۔ لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب اس کا بزنس زیادہ بڑھ گیا تو سمندر میں طوفان آیا اور اس کا جو سارا اس کی جو فیکٹری تھی اس کو بہا کر لے گیا۔ تو جب پادری صاحب کو پتا چلا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، تو اس کو اس افسوس کے لیے اس کے پاس گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہ بندہ اسی فیکٹری کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھا ہنس رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ تو پادری صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو پھر سے وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو دورہ پڑ گیا ہے، پھر سے اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب اتنا نقصان ہوا ہے، بہت افسوس ہوا اس بات کا، افسوس کیا۔ لیکن وہ بندہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ تو پادری صاحب سے نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ صدمے میں تو نہیں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میں صدمے میں نہیں آیا، کیونکہ خداون میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ابلیس نے تو میرا سارا کچھ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری ساری دولت کا، میرے سارے مال کا جو منبع ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ تو آزمائش اس پر بھی آئی لیکن وہ قائم رہا، مصیبتوں میں بھی قائم رہا، طوفان آیا، اس کا سارا کچھ بہا کر لے گیا، لیکن وہ قائم رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اس کو خداوند کا تجربہ ہو چکا تھا۔
اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں ایوب نبی کا صحیفہ تو وہاں پر لکھا ہے 23 باب میں اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 23 باب اور اس کی 10ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن وہ راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ ایماندار کی آزمائش، اس کی مشکلات، مصیبتیں اس کی زندگی میں ٹھیک اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح سونا جو ہے وہ خالص ہونے کے لیے اس کو بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایوب بھی کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ مجھے تالے گا تو میں خالص سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ ایماندار آزمائشوں کے بعد خالص بن جاتا ہے، اس کی ساری خامیاں، ساری کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بھیڈنگا درخت اگر ہم دیکھیں، ٹیڑھا درخت جو ہے کبھی وہ خوبصورت نہیں لگتا، لیکن جب اس درخت کی تراش ہو جاتی ہے، اس کو چھانٹا جاتا ہے، اس کی تراش خراش کی جاتی ہے، اس کی کٹنگ کی جاتی ہے، تو وہ درخت جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے، اٹریکٹیو ہو جاتا ہے اور کثرت سے اس کو پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایماندار جو ہے تراش خراش ہوتی ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتا ہے تو وہ اٹریکٹیو بن جاتا ہے، اس کی منسٹری جو ہے فروٹفل ہو جاتی ہے، وہ مؤثر ہو جاتا ہے، اس کا کردار جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں ایماندار کے لیے ایک بیوٹی پروڈکٹ کی بھی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اس کو خوبصورت بناتی ہیں، اس کی خامیاں، اس کی کمیاں دور کرتی ہیں، اس کے کردار کو نکھار دیتی ہیں۔ اسی لیے جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایک ایماندار کو کبھی بھی بٹر نہیں ہونا چاہیے، اس کو مشکلات، شکایتیں، شکوے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ وہ دلیری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان سب کو فیس کرے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دے تاکہ وہ مضبوط ہو سکے، کامل ہو سکے ہم، اور اس جو ہمارے اندر کمی ہے وہ کمی نہ رہے۔ کبھی بھی آزمائشوں کو، حالات کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی خوشی اور اطمینان کو چھین لیں، بلکہ کامل بننے کے لیے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیں اور خدا کے مقصد کو جو آزمائشوں کے پیچھے ہے اس کو پورا ہونے دے تاکہ خداون جو ہے، خداون کے نام کو ہماری زندگیوں سے جلال ملے۔ بائبل مقدس میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے خدا کے خادمین ہیں جنہوں نے آزمائشیں برداشت کی، جن پہ مشکلات آئیں، لیکن پیچھے خداون کا ہاتھ تھا، خداون کام کر رہا تھا۔ ایوب نبی کبھی کبھی بارے میں ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ اس پر بھی آزمائش آئی، اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن پیچھے خداوند کام کر رہا تھا، خداوند اس کو چیک کر رہا تھا، خداوند اس کی زندگی پر فخر کر رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلتا ہے، وہ میرے ساتھ پیوستہ ہے، اس کو میں کاٹتا چھانٹتا ہوں تاکہ وہ اور زیادہ اٹریکٹیو نظر آئے۔ اور ابلیس بھی کہتا ہے کہ تو خداوند تو نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ تیری تمجید کرتا ہے، اس لیے وہ تجھے پوجتا ہے۔ تو خداوند جیسے شیخی مارتا ہے کہ تو اس کو چیک کر لے، اگر وہ اس وجہ سے ہے تو چیک کر لے، لیکن اس کی جان کو نقصان نہ دینا، باقی تو جو کرنا چاہے وہ کر اس کے ساتھ۔ لیکن وہ اپنی آزمائش میں پورا اترا، اس نے خداوند کے نام کو جلال دیا، خداوند کی بڑائی کی اس نے، اور پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو دگنی برکت۔ جب ہم آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تو کلام کہتا ہے کہ مصیبتیں جو ہیں، آزمائشیں جو ہیں، اس پر بھی فخر کرے، کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، ہم مضبوط ہوتے ہیں، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور وہ امید جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ امید ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور وہ امید ہم خداوند میں حاصل کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کلام میں یعقوب کے خط میں ہم نے پڑھا
वो कहते हैं कि जब तुम तरह तरह के आजमाइशों में पड़ो, कोई भी आजमाइश हमारी जिंदगी में हो सकती है, हर इंसान खुद जानता है वो किस तरह की आजमाइश में पड़ा हुआ है, लेकिन उसे जरूरत है कि वो किस तरह उन आजमाइशों में कायम रहे। और कलाम कहते हैं कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदावंद भी जब देखे तो वो भी फख्र करे, वो भी कहे कि ये मेरा बंदा जो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। खुदावंद हम सब से भी ये तवक्को करता है, खुदावंद चाहता है कि हम भी आजमाइशों में, तरह तरह की जो आजमाइशों का हमें सामना करना पड़ता है, हम उसमें कायम रहें, हम खुदावंद के साथ लिपटे रहें। कलाम कहता है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। एक खुदा का खादिम, उसने एक किताब लिखी, जब खुदा खामोश रहा। तो उसको ये किताब जब वो आजमाइश में था, गुजर गया, तो तब खुदा ने उन सारे हालात में ये बुक उससे लिखवाई। उस पे आजमाइश ये आई थी, मुसीबत ये आई थी कि वो खादिम खुदा की खिदमत करता था, लेकिन उसके बेटे ने फांसी ले ली, उसने अपनी जान ले ली और उसकी डेथ हो गई। और खादिम, जो खुदा का खादिम था, वो उस बात से उसने बहुत टेंशन ली और इस कदर वो अपना दिमागी तवाज़ुन जो था वो खो चुका था। कहता कि मुझे कोई भी बात, मैं जो भी बात करता था, मुझे कोई बात याद नहीं रहती थी। थोड़ी देर होती थी, बात करता था, उसके बाद मुझे भूल जाता था कि मैंने कहा क्या है। मैं अपनी बीवी को कहता था कि मैं जो कहता हूँ वो याद रखे। और उस सारे हालात में कहता है कि कलाम कहता है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो कहता, मैंने कहा कि शायद इस आयत में कोई कमी है या कोई गलती है, ये क्या क्या लिखा है बाइबल में। उसने कहता, मैंने बड़े तर्जमे देखे, बड़ी ट्रांसलेशंस देखी, कमेंट्रीज देखी, कि कहीं से मुझे पता चले कि इसमें कोई गलती है। कैसे हो सकता है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो कहता, जब खुदा ने मुझे उसमें से निकाला और उसी टेंशन में, उसी परेशानी में कि उसके बेटे ने अपनी जान ले ली, फांसी ले ली, और वो बंदा जो है वो खुदा का खादिम था, टेंशन में उसको खुदा ने उस आजमाइश में से गुजारा और वो किताब खुदा ने लिखवाई उससे कि वाकई सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर। तो जरूर है कि हम उन सारी चीजों को, जो भी हमें आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, उन सब के पीछे चूंकि खुदावन हमारे साथ होता है, हमारी आजमाइशों में हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारा खुदा बनता है, तो जरूर है कि हम उसको देखें कि वो इन सारी बातों में, इन सारी मुसीबतों में कहाँ पर है, हम कहाँ उसे ढूंढ सकते हैं, ताकि वो हमें मजबूत करे, हमें धोए, ताकि हम खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर व्यवस्था हो सके, हम उस पर भरोसा कर सके, उसके साथ चल सके, ताकि हम कामिल हो सके। तो फिर कलाम कहता है, तो तुम में किसी बात की कमी ना रहे। जब हम इन सारी चीजों में से गुजर जाते हैं, तो फिर खुदा हमें खालिस कर देता है, हमारी कसावतों को, हमारी कमियों को, हमारी जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको खुदा दूर करता है। तो फिर हम कामिल होते हैं, हम खुदा के लायक ठहरते हैं। और फिर खुदा जो है वो हमें अपनी खिदमत के लिए, क्योंकि एक टेस्टेड बंदा जो है, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उसको खुदा फिर ही अपने काम के लिए चुनता है, जब वो टेस्ट किया जाता है। तो जरूर है कि हम आजमाइशों में खुदावंद पर तवक्कुल करें, हम खुदावंद के हाथ को मांगे, ताकि खुदावंद हमें आजमाइशों में मजबूत कर सके और हम खुदा पर भरोसा करने वाले बने। और ये आजमाइशें जो है, ये सब जो चीजें हैं, ये जो आजमाइशें हैं, ये सारी खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और हम इस भेद को जाने, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन।
खुदावन के इस खूबसूरत कलाम के लिए कि आजमाइशें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। आजमाइशें हम पे आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मारिया ने कहा कि एक बिलीवर की ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम ज़मीन पर मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें अपने ईमान में स्ट्रॉन्ग रहना और इन टेम्पटेशंस पे हमने काबू पाना है अपने ईमान के वसीला से, क्योंकि ये हमारे ईमान को और मजबूत करता है ताकि हम वो चट्टान बन सके। तो खुदावंद की मर्जी है कि हम वो सख्त चट्टान बन जाएं इन आजमाइशों के वसीला से, ताकि हम पे कोई पत्थर फेंके तो हम पे असर ना हो। तो हम खुदावंद के इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ पास्टर इलियास रफीक हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और कलाम के लिए बरकत चाहें, ताकि जिस तरह हमने बरकत पाई इस तरह दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें। आए शब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, जमीन और समान को खलक करने वाले खुदावन, देख तेरी बेटी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिसके मुंह से खुदावन तूने आज अपने कलाम को जारी किया। खुदावन हम इनके लिए, खुदावन इनकी फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं, सुनने वालों के लिए बरकत चाहते हैं। मिन्नत करते हैं कि खुदावंद ये कलाम का जो बीज तेरी बेटी के विसाकत से बोया गया है, ये सो का सोग ना फैलाए, क्योंकि खुदावंद तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा को जारी करता है। मिन्नत करते हैं खुदावंद, देख तेरी पाक हजूरी में कि खुदावंद तू हमें बरकत दे, सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, पूरी सलामती दे, ताकि ये मिनिस्ट्री में खुदावंद हम खूब बड़े, फले जमीन पर जोर आवर हो, और तेरा रूल कुद्दस से एक एक को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो